Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture we will continue with the series on philosophy. In the last two lectures we have seen the basic syllabus of philosophy. First lecture we have seen the syllabus of philosophy, and in lecture 2 we talked about certain important words about the meanings of philosophy, that it derived from the word called philo and sophia, and in Indian context it is talking about darshan. And how these things are related, we have also seen the characters or the characteristics of philosophy. In today's lecture we will move further, and today we will talk about the nature of philosophy. Okay? So today we will talk about the nature of philosophy. This is very much written in your syllabus, nature and scope. So today we will talk about the nature of philosophy. More or less it will also give you the scope of philosophy, that in which all places the philosophy is applicable. ठीक है? So वो क्या होगा, उसका scope होगा. So scope of philosophy, we will also see the nature of philosophy. So under the nature and scope we will talk about, ultimately यहाँ पर देखो क्या किसके बारे में बात करते हैं. First of all, application of philosophy. Application of philosophy, that is, इसका मतलब क्या है, what all work did philosophy do, किस तरह के काम हमारी philosophy करती है. So it is basically deals with the what all work philosophy do. ठीक है, कौन कौन से काम को philosophy करती है. नंबर 2, अंडर दिस जब हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं तो ये तो पढ़ती है, बट नेचर एंड स्कोप इज मोर रिलेटेड टू द कोर प्रिंसिपल्स और द कोर एरियाज वेयर द फिलॉसफी एग्जिस्ट. सो द कोर एरिया ऑफ फिलॉसफी. सो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द कोर एरिया ऑफ फिलॉसफी. क्लियर है? तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का. ठीक है? whether we talk about the application of philosophy, which all places or what all kind of work it did, and also we will talk about the core area of philosophy. मतलब कहाँ पर उसका definitely extent है core areas. ठीक है? So if you look into the nature and scope of philosophy from this two point of view, application of philosophy and core area of philosophy, then we will see this philosophy is very much exist or very much is applicable in the following areas. So these areas ultimately talks about the nature and scope. So वो कौन कौन से एरियाज है जहां पर फिलॉसफी एप्लीकेबल है. द एरिया कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी. एरिया कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी, द थ्योरी ऑफ नॉलेज. किसी भी नॉलेज मतलब यू आर स्टडिंग अबाउट समथिंग, किसी भी चीजों के बारे में हमको नॉलेज मिल रहा है. ठीक है? वी आर सीइंग कि हाँ इसके रिगार्डिंग हमको नॉलेज है, बट उस नॉलेज की ओरिजिन क्या है, वो नॉलेज कैसे मिला और किसके बारे में हमको वो नॉलेज मिला. विल टॉक अबाउट दैट थिंग. जो नॉलेज मिल गया उस नॉलेज को नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज की ओरिजिन को पढ़ेंगे कि नॉलेज कैसे मिला, वेदर द नॉलेज इज राइट और रॉन्ग. तो वो पूरे की पूरी नॉलेज को हम पढ़ते हैं कहां पर, एपिस्टेमोलॉजी. LT. ठीक है? सो एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी की किसी भी हम एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी मतलब वी विल गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन ही है फिलॉसफी एंड फाइंडिंग द आंसर्स. तो किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके रिगार्डिंग आंसर्स खोजेंगे, वहीं से हमारे क्या होगा, एक नॉलेज बेस बनेगा. सो वी टॉक अबाउट दैट नॉलेज अंडर एपिस्टेमोलॉजी. ठीक है? एक एरिया ये हुआ. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ नॉलेज और द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज. सो फिलॉसफी और थ्योरी. ठीक है? अभी हमने ऐसे लिखा, प्रॉपरली लिखेंगे फिलॉसफी और थ्योरी ऑफ नॉलेज. philosophy or theory of knowledge. Then the second scope that this subject deals with, or the आपका जो nature या scope की हम बात करें, second core area where you can apply the philosophy is metaphysics. The second core area is metaphysics. So metaphysics is theory of reality. What kind of reality exists? किसी भी चीज में किसी भी चीज की हम रियलिटी को फाइंडिंग करेंगे. ठीक है? सो देयर में बी फॉर वन थिंग देयर में बी नंबर ऑफ रियलिटीज. किसी एक चीज को पाने के लिए, सपोज करो एक एग्जांपल देते हैं, किसी एक चीज को पाने के लिए आपने बोला कि इस रास्ते पे चलो, एंड यू आर सेइंग कि हाँ यही करोगे तभी डेफिनेटली आपको क्या होगा, उस चीज को आप अचीव कर पाओगे. सो देयर इज ओनली वन रियलिटी एग्जिस्ट फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन.
नहीं, कोई आके बोला कि नहीं आप इस तरह से भी कर सकते हो, वही चीज मिल जाएगा। सो उस समय क्या होगा, ड्यूअलिज्म एग्जिस्ट, दैट देयर आर द टू पाथ्स ऑफ गेटिंग द सक्सेस। बट वहीं पर हो सकता है देयर आर द नंबर ऑफ पाथ्स फॉर गेटिंग द सक्सेस, प्लूरलिज्म। सो हाउ मेनी रियलिटी एग्जिस्ट एंड दिस रियलिटी इज अबाउट द नेचर। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कि किस तरह से बात हो रही है, यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। एंड अंडर द मेटाफिजिक्स ओनली विल टॉक अबाउट एवरीथिंग लाइक सोल। तो सोल की बात करें, आत्मा, आत्मन या आत्मा। सो सोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके बारे में भी काफी डिबेट है। यू आर सेइंग कि मरने के बाद आत्मा शरीर से निकल जाता है, बट क्या डेफिनेटली वो आत्मा है या नहीं है, बॉडी में वो आत्मा होता है कि नहीं, साइंस तो प्रूफ नहीं कर पाया, बट हाँ इन फिलोसफी विल से कि हाँ ये होता है। सो वेदर द रियलिटी, इन रियलिटी दैट सोल एग्जिस्ट और नॉट, नोबडी नोज, और यू कैन से एवरीबॉडी नोज, दोनों कंस्ट्रक्ट है। तो विल टॉक अबाउट दैट सोल, इस मेटाफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ रियलिटी। इट इज द थ्योरी ऑफ रियलिटी, इट इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज, और द फिलोसफी ऑफ रियलिटी, द फिलोसफी ऑफ नॉलेज। सो फिलोसफी ऑफ रियलिटी हमको इस तरह से पढ़ेंगे। देयर विल टॉक अबाउट द सबकॉन्शियस और द कॉन्शियस माइंड और द कॉन्शियस स्टेट। ठीक है, जो जागरूकता बोलते हैं, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, विल टॉक अबाउट दैट इन द मेटाफिजिक्स। ठीक है, क्लियर है, मेटाफिजिक्स क्लियर है। सो मेटाफिजिक्स, इसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, अबाउट रियलिटीज। ठीक है, द थ्योरी ऑफ रियलिटी। देन द थर्ड एस्पेक्ट वेयर योर फिलॉसफी इज एप्लीकेबल इज एथिक्स। थर्ड इज एथिक्स। एथिक्स क्या होता है, इट इज मोर टुवर्ड्स योर ह्यूमन कंडक्ट, जो हम काम करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स जो भी चीजों को करता है उसके कंडक्ट के रिगार्डिंग। सो एथिक्स, देखो यहां पर हमको नॉलेज मिला, नॉलेज अबाउट द रियलिटी, किसी भी चीज के बाद नॉलेज पे, पर उस देखो अदर सब्जेक्ट टॉक्स अबाउट द नॉलेज, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देता है, बट ह्यूमन कंडक्ट के लिए कौन सा नॉलेज सही है, कौन सा गलत है। सो वेदर द ह्यूमन कंडक्ट इज राइट और रॉन्ग, ethics will teach you about the right and wrong aspects of knowledge or right and wrong conduct of life. So ethics is more towards what is right and what is wrong for a human. तो human conduct के ऊपर स्टडी है, that is ethics। और human conduct में क्या सही है क्या सही नहीं है, वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, philosophical investigations के थ्रू हम उसको जान सकते हैं। ठीक है, so philosophy of epistemology, the philosophy called metaphysics, then we'll talk about the ethics। ये सारा का सारा क्या है, इसका कोर एरिया है, कोर एरिया ऑफ फिलॉसफी। देन द अदर एरिया ऑफ फिलॉसफी इंक्लूड लॉजिक, कल मैंने बताया था रैशनल थिंकिंग, द रैशनल थिंकिंग, तो वो कहां से होता है, लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग, मोर ऑफ थिंकिंग कि हाँ किस तरह से हम किसी भी सच्चाई को या किसी भी चीजों को पता कर रहे हैं, मोर ऑफ रैशनल एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी, दैट इज योर लॉजिक। सो द कोर एरिया इंक्लूड एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स एंड लॉजिक। ऑल्सो विल talk about cosmology, this philosophy, the philosophy of cosmology or the cosmology ultimately talks about this universe। और more or less अगर हम cosmology में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, we study about under the cosmology problems of universe or the problems of life, and ultimately we will also try to find the answers of those problems under the cosmology। क्लियर है। सो these are the certain areas where your philosophy और the core areas of philosophy, हम किस देखो core area of philosophy मतलब हम किस जगह पे हम philosophical inquiry को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो these are the core area of philosophy कि इन सारी चीजों को ही पढ़ना क्या कहलाता है, फिलोसफी कहलाता है। इन सारी चीजों पे ही बात करना क्या कहलाता है, एक फिलोसफी कहलाता है। So these are the core area of philosophy and this only gives you the scopes and as well as the nature of philosophy. Then under philosophy only देखो religion आपका बिल्कुल अलग नहीं है philosophy से, कहीं ना कहीं दोनों में भी थोड़ी बहुत बातें कॉमन होती हैं और दोनों एक दूसरे से सिंक्ड हैं। So we will also talk about the theology, the philosophy of religion. Theology, it is also called as the philosophy of religion. रिलीजियस फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। अब देखो थियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपको नॉर्मल रिलीजन पढ़ाया जाए, नॉर्मल हम रिलीजन पढ़ते हैं, क्या होता है कि उस रिलीजन में आपको क्या क्या चीजों को प्रैक्टिस करना है। तो दे विल से कि आप रिचुअल्स करो, दे विल से कि नहीं आपको प्रार्थना करनी चाहिए, दे विल से कि क्या भाई आपको क्या करना है, भगवान के सामने कमंडल लेके जल ही डालना है, तभी आपको क्या मिलेगा, जो भी चीजें मिलेंगी। बट इन फिलॉसफी
वो प्रार्थना करते हैं तो जो भी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं उस रिचुअल्स के बारे में इंक्वायरी करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ वो चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए। सो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन टॉक्स अबाउट द वेरियस प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स, कि उसकी कितनी जरूरत है या उसकी कितनी जरूरत नहीं है। तभी तो यहां डिस्प्यूट हो रहा है कि फिलॉसफी में ही, रिलीजन में आके क्या कर रहे हैं, गॉड को डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इतने एरियाज में वी हैव आवर फिलॉसफी, और यही उसका क्या होगा, कोर एरिया होगा, जिसको हम बोल सकते हैं नेचर, दैट द फिलॉसफी इज एप्लीकेबल, कि हम किस किस एरिया में हम फिलोसफिकल इंक्वायरी को करते हैं। ठीक है, और दूसरा उसका कोर एरिया क्या है। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट विद द एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, लॉजिक, थियोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी। विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन अगर यहां से आएगा, राइट अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी, यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग्स, इसको बताना है। ठीक है, that this deals with the application of philosophy in particular area and the core area where the philosophy exists। तो ये क्या है, ये दोनों चीजें। ठीक है, सो नाउ वन बाय वन हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन धीरे धीरे मैं आपको बिल्डअप की ओर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सीधा इंडियन फिलॉसफी उठा के या सीधा आपको 4 वाक का मेटाफिजिक्स नहीं समझा रहा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहे हैं धीरे धीरे, कि एरिया क्या है, इसी एरिया से हम उस चीज को आगे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ फिलॉसफी। वन बाय वन ये जितने भी चीजें हैं, इन चीजों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। होप यहां तक अभी आप जो भी पढ़ाया क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट हाँ अब यहां से आपको समझ आएगा, क्योंकि यहां से अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है वहां से आपको समझ बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसके पहले मैंने आपको ये बताया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ताकि आप रेडी हो उस चीज के लिए जो आज से हम कर रहे थे। ठीक है, जो आज हम करने जाने वाले हैं इसके लिए हमने रेडी आपको कब किया है, इसके पहले लेक्चर्स में किया है। तो होप उस वीडियोस को आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले बोल रहा हूं मैं कि उस वीडियोस को आप क्या करो, देख लो, जिससे कि ये वीडियोस आपको क्या हो, समझ आए। सी द डस्टर, दिस डस्टर इज नॉट वर्किंग इन अ गुड मैनर, सो हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़े। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड स्कोप, द फर्स्ट टॉपिक प्लीज नोट डाउन और राइट डाउन इन योर कॉपी, एपिस्टेमोलॉजी, द थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, सो वन बाय वन, अंडर नेचर ऑफ फिलॉसफी, राइट डाउन epistemology. This epistemology is theory of knowledge. Theory of knowledge. Also called as the philosophy of knowledge. आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, theory of knowledge और the philosophy of knowledge, epistemology. So under the epistemology, ultimately we talks about the knowledge, whether the knowledge is right knowledge or the wrong knowledge. We talk about the source of knowledge. तो अल्टीमेटली इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज में वी स्टडी अबाउट द वैलिडिटी और द वैलिड, किस चीज को, कोई भी चीज के बारे में हमको नॉलेज मिल रहा है तो उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर द थ्योरी ऑफ नॉलेज वी स्टडी अबाउट द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि वो जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है वो कितना वैलिड है, या सही नॉलेज है या रॉन्ग नॉलेज है। कोई भी आपको आके कुछ बता गया लाइफ के बारे में, कोई आके क्या बोला कि आत्मा नहीं होती है, तो उस इंसान से या उससे आपने जब उसको नॉलेज को आपको मिला, तो वेदर दैट नॉलेज इज राइट और रॉन्ग, उसके बारे में स्टडी हम करते हैं कि उसने बोल दिया तो हम माने या नहीं माने, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो विल इंक्वायर अबाउट दैट नॉलेज, वेदर द नॉलेज इज वैलिड और नॉट। सो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज वी विल टेस्टिफाई, और द वैलिडिटी ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। कोई भी नॉलेज है, उस नॉलेज का सोर्स को हम पहले देखते हैं सबसे पहले, कि वो नॉलेज ओरिजिन कहां से हुआ है, कहां से वो नॉलेज मिला, और जहां से वो नॉलेज मिला क्या वो वैलिड है या नहीं, वो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो वैलिड सोर्स है और इट इज नॉट अ वैलिड सोर्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्लियर है। देन वैलिडिटी के बाद उस नॉलेज
के हम टाइप्स को देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इट इज। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉलेज। अंडर एपिस्टेमोलॉजी विल टॉक अबाउट द विच टाइप ऑफ नॉलेज वी आर गेटिंग। ठीक है, नॉलेज भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोग्निटिव नॉलेज, जो हमारे ब्रेन से हमने किसी चीज को, किसी भी नॉलेज को जनरेट किया है, दैट इज योर कोग्निटिव नॉलेज। एक होता है डिडक्टिव नॉलेज, एक होता है इंडिकेटिव नॉलेज, अलग अलग तरीके के नॉलेज होते हैं। ठीक है, सपोज करो टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब यहां पर क्या है, फॉरेस्ट है, सपोज करते हैं इस एरिया में आपका क्या है, फॉरेस्ट है, सपोज दिस इज फॉरेस्ट, क्लियर है। अब यहां पर कुछ लोग रहते हैं, ए बी सी डी, और यहां रहता है ई। ई आया और उसने ए को बताया क्या, कि वहां पर एक फॉरेस्ट है। ई ने फॉरेस्ट को क्या किया था, खुद देखा था, तो ई ने फॉरेस्ट को क्या देखा है, खुद देखा है। बी को उसने क्या किया, बताया है। ए ने बी को बताया कि एक जगह पे फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में इतने सारे पेड़ होते हैं, ये होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। समझना अच्छे से, ई ने फॉरेस्ट को खुद देखा है। हिज नॉलेज इज परसेप्शन बेस्ड, इसने देखा है उस चीज को, उसने परसीव किया है, ही जस्ट सी द रियलिटी, इसने एटलीस्ट सच में नॉलेज को देखा है, फॉरेस्ट को देखा है और देख के वो बता रहा है। देन ए से एक उसने क्या किया, अपने नॉलेज को बताया, तो ए या तो ई पे बिलीव करे या वो खुद जाए। तो इसके लिए क्या हो रहा है, नॉलेज वेरी कर रहा है ना, इसके लिए नॉलेज अलग तरीके का। इसके लिए क्या, उसने देखा तो 100% ट्रू नॉलेज है, बट इसके लिए या तो ई सच बोल रहा होगा, या तो हो सकता है ए वहां पर जाकर खुद देखे, तो बात अलग है। तो ए का नॉलेज कैसा है, वो अपेक्ट सुना हुआ नॉलेज है, और सुनने के बाद उसने अपने ब्रेन में उस चीज को मैप किया कि वो बता रहे हैं वहां पर पेड़ होते हैं, वहां पर जानवर होते हैं। तब उसको उसने क्या किया, अपने ब्रेन पे उस चीजों को एक मैपिंग सा किया है और उससे एक नॉलेज बनाया है। एंड देन उस नॉलेज को उसने कहां पर ट्रांसफर किया, बी के पास। सो इन रियलिटी इन दोनों ने फॉरेस्ट को देखा ही नहीं है, बट दे हैड द नॉलेज अबाउट द फॉरेस्ट, बट रियल नॉलेज तो इसके पास था, बट अल्टीमेटली इनके पास भी नॉलेज है। तो व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, कि वो किस तरह का नॉलेज है। किसी ने कुछ चीज को बता दिया तो हम सीधा उसको मान लिए कि हाँ उसकी अल्टीमेट रियलिटी पे हम जाएंगे कि हाँ वो नॉलेज सही था या नहीं था, और किस तरह से वो नॉलेज आया। ठीक है, किसी ने बोला भगवान है, समवन से गॉड है, तो अगले ने बोला कि कहाँ है, या कोई मान लिया कि हाँ भगवान तो होते हैं, उसने बताया ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं। तो फिर यहीं पर फिलॉसफी आया कि गॉड है, आपने देखा है, उन्हें नहीं देखा है, तो कैसे हैं, बोले मैंने महसूस किया है, आई फेल्ट द गॉड बट आई हैव नॉट सीन द गॉड। बट यू सीन द गॉड इज परसेप्शन, कि आपने डेफिनेटली गॉड एग्जिस्ट करता है, बट यू फेल्ट द गॉड, आपने बस महसूस किया भगवान को, वो रियलिटी है कि नहीं, उसके ऊपर स्टडी होगी। ठीक है, तो नॉलेज वेरी करता है अलग अलग तरीके से। अभी एकदम बेसिक लेवल पे याद रखेंगे कि नॉलेज वेरी करता है, और बहुत सारे प्रकार के नॉलेज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो टाइप ऑफ नॉलेज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर है? सो इन एपिस्टेमोलॉजी द थ्योरी ऑफ नॉलेज और द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, वी टॉक्स अबाउट द नॉलेज इन टर्म्स ऑफ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉलेज। थर्ड एस्पेक्ट इन एपिस्टेमोलॉजी द थ्योरी ऑफ नॉलेज, वी टॉक अबाउट, जो तीसरी चीज हम बात करते हैं नॉलेज के ऊपर, वो किसके ऊपर बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज। एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, कि वो नॉलेज कितना बड़ा है और किस किस एरिया तक वो नॉलेज है और कहां कहां तक वो एप्लीकेबल है। सो विल टॉक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, कि इस नॉलेज का ओरिजिन से लेकर उसका अल्टीमेट एप्लीकेशन कहां तक और किस किस एरिया में उसको अप्लाई कर सकते हैं। So the complete dimension of knowledge, कि उसका extent कहां तक है। So we talk about the source of knowledge, we talk about the type of knowledge, we talk about the extent of knowledge, and we also talk about the nature of knowledge. उस knowledge के nature के बारे में बात करते हैं। Extent, कितना विस्तृत है वो knowledge, कितना बड़ा है वो ज्ञान, उसके बारे में पढ़ते हैं। Nature of knowledge, उस knowledge की प्रकृति क्या है, ठीक है, उस knowledge का कैरेक्टर क्या है, ठीक है, whether that knowledge is a rational knowledge or irrational knowledge, logic based defined knowledge or not,
सो अल्टीमेटली हम यहां पर क्या करते हैं, उस नॉलेज के नेचर को पढ़ते हैं। क्लियर है? सो अंडर द थ्योरी ऑफ नॉलेज वी टॉक अबाउट द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, we study the type of knowledge, we study the extent of knowledge, and we also study the nature of knowledge. And moreover, सबसे important, the fifth aspect of the epistemology, that is we study the relation between the knower and knowable. What these two are? So we study about the relation between knower and knowable. प्लीज राइट अलॉन्ग विथ मी, डोंट से कि सर अभी तुरंत इसका नोट्स तुरंत प्रोवाइड करो, लिखते चलो, पूरा बोर्ड में समझा रहा हूं, बहुत धीरे चल रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ आए। नोट्स से कुछ ना पढ़ पाओगे, मैं नोट्स दे भी दूंगा तो भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? और इसको लिखते हुए भी चलना है। रिलेशन बिटवीन नोअर एंड नोएबल, ये क्या होते हैं? अब सपोज करो यहां पर दिस इज, चलो उसी एग्जांपल को यहां पर भी रिपीट करते हैं, फॉरेस्ट, ठीक है? यहां पर हमारा कौन था? ई था। अभी मैं आपको इस एग्जांपल को पूरा एक्सप्लेन अच्छे से समझाता हूं, कभी समझ आएगा, ठीक है? यहां पर हमने टाइप ऑफ नॉलेज की बात की थी, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, कि ये फॉरेस्ट के बारे में कितना ज्यादा पता है। ई ने बताया कि वहां पर फॉरेस्ट है, ए ने बोला कि अच्छा पता है तुझे फॉरेस्ट है, वहां पर क्या होता है, जंगल में क्या होते हैं, हाथी होते हैं, वहां पर जंगल में क्या होता है, पेड़ है, पौधे हैं। एक्सटेंट ऑफ नॉलेज ए के लिए क्या था कि फॉरेस्ट कैसा है। बी को उसने चीज बताया, बी ने सी को बताया क्या, कि ए ने मुझे बताया था कि एक बहुत बड़ा जंगल है जहां पर इतने जानवर हैं और वहां पर इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, और उसको ई ने ये चीज बताया था जिसने उसको खुद देखा है। एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज देखो कैसा बड़ा होती जा रहा है। तो उसी नॉलेज को कितना एक्सटेंड किया गया, किस कहां कहां पे अप्लाई किया, और अल्टीमेटली वो फॉरेस्ट के बारे में उनको कितना कुछ पता चल रहा है कि इसने खाली फॉरेस्ट के बारे में ई ने बताया यहां पर, तो बी को बताया होगा, ई ने बताया, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो फॉरेस्ट कहां पर है वो भी अब पता चल रहा है, किसको, डी तक पता चल रहा है। बट एग्जैक्टली में इसने नहीं देखा है, एग्जैक्टली में ये वहां पर प्रेजेंट है, बट डी को ही पता चला कि कहीं पर एक जगह पर फॉरेस्ट है, तो नॉलेज देखो उस फॉरेस्ट का नॉलेज कहां तक पहुंच गया, हम उस सारी चीज को पढ़ते हैं। एक जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो लाइफ की रिगार्डिंग ऐसी है, किसी ने महसूस किया, किसी ने बताया सोल के बारे में किसी को, फिर उसने उस पर डिबेट किया, डिस्कस किया, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, थर्ड को पास ऑन हुआ, फिर वहां डिबेट हुआ, डिस्कस हुआ, इंक्वायरी हुआ, फोर्थ को पास ऑन हुआ, तो नॉलेज का एक्सटेंट बढ़ता गया कि नहीं इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है। क्लियर है? सो उस चीज के बारे में बात करें, बट अल्टीमेटली नॉलेज जो फर्स्ट टाइम जहां पर था, इट इज बिटवीन द नोअर एंड नोएबल। नोएबल मतलब वो चीज जिसके बारे में हम नॉलेज खोज रहे हैं। सो फॉरेस्ट इज अवर नोएबल पार्ट, about whom we have the knowledge, about whom we have the knowledge, जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज है और जिसके बारे में हम नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं या खोज रहे हैं, उसका रिलेशन किससे? ई से। ई कौन है? नोअर, उसको भी पढ़ना जरूरी है। मतलब इन दोनों के रिलेशन को पता कर रहे हैं कि जिसने उस नॉलेज को खोजा है, वन हु फाइंड्स दैट नॉलेज, it is between one who finds that knowledge and one who knows about that knowledge. Sorry, मतलब क्या है? One who finds that knowledge and the thing about which that knowledge exists. तो देखो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि ई ने बता दिया, मान लिया और हम उस नॉलेज को एक्सेप्ट कर लिए। ई और फॉरेस्ट का क्या रिलेशन है, पहले उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, तभी उस चीज को हम बोलेंगे वो एक वैलिड नॉलेज है। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था यहाँ पर? इस फॉरेस्ट के बारे जो हमने पढ़ा, इसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था? सोर्स इज ई, ई उसका सोर्स था। किस तरह का नॉलेज था वो डिफाइन होता है कि ई ने किस तरह से उसको बताया और कैसे कैसे वो आगे गया, कहां तक वो नॉलेज फैला है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। उस नॉलेज का नेचर क्या है वो भी देखेंगे, और अंत में देखेंगे कि ये जो सोर्स है और ये जो है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो अल्टीमेटली क्या रिलेशन निकलेगा कि ई लिव्स इन नियर बाय एरिया ऑफ फॉरेस्ट, और या तो फॉरेस्ट में रहता है, तो डेफिनेटली इसको फॉरेस्ट के बारे में सही पता है। एंड देन वी विल से कि हाँ ये क्या है, आपका एक वैलिड नॉलेज है, क्योंकि वो वहां रहता है, उसने चीजों को देखा है, उसने इन्फर किया, जो भी चीजें की हैं, तो ये वैलिड नॉलेज है। सो द स्टडी ऑफ कंप्लीट स्टडी ऑफ द नॉलेज, हम फॉरेस्ट के बारे में जो नॉलेज मिला है, फॉरेस्ट तो है बट फॉरेस्ट के नॉलेज को हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
हमको एक नॉलेज मिल गया, हम उसी के बारे में पढ़े जा रहे हैं। हम फॉरेस्ट को जाकर वहां देखकर हम फॉरेस्ट के अंदर और चीजों को इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट के बारे में जो हमको नॉलेज मिला हम उस नॉलेज को पढ़ना स्टार्ट किया। सो हमको जो आत्मा के बारे में या किसी चीज के बारे में नॉलेज मिलेगा, सो उसके अंदर कितना उसका एक्सटेंट है, कितनी डीप स्टडी हो सकती है, उसके बारे में क्या है, उसका नेचर क्या है, और जो उसने उसके बारे में बताया है, जिस तरह से बताया उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। That is the theory of knowledge. So epistemology, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, write a note on epistemology. So you will write epistemology is a philosophy or the theory of knowledge, and in this philosophy we talked about the knowledge in terms of validity of knowledge, whether the source of knowledge, the type of knowledge, extent of knowledge, nature of knowledge, and relation between the knowers and knowable. ठीक है, जो उस नॉलेज को फाइंड किया है और जिसके बारे में नॉलेज को फाइंड किया, इन दोनों की स्टडी को एक साथ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर एपिस्टेमोलॉजी। जस्ट राइट डाउन फ्यू वर्ड्स, फ्यू थिंग्स अबाउट एपिस्टेमोलॉजी, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी इज अ स्टडी और द फिलोसफी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी इज अ स्टडी और फिलोसफी ऑफ नॉलेज about philosophy, it is a philosophy about study or philosophy or study of knowledge, comma, how does knowledge originate, how does the knowledge originates, कैसे वो knowledge होता है, what is its limitation, knowledge कैसे origin होता है, उसका limitation क्या है, ये सारे के बाद ना, what is its limitations, कॉमा, कैन वी नो एवरीथिंग अबाउट द नॉलेज, क्या हम उस नॉलेज के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, कैन वी नो एवरीथिंग अबाउट द नॉलेज, एक्सेट्रा। तो इस तरह की स्टडी को हम कहाँ पे करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी पे। ठीक है, तो किसी चीज के बारे में जो नॉलेज है, उस नॉलेज की पढ़ाई करना ही क्या कहलाती है, एपिस्टेमोलॉजी। एंड द पर्सन हु स्टडी द नॉलेज आर कॉल्ड एज एपिस्टेमोलॉजिस्ट। वो किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, वो नॉलेज को पढ़ते हैं। They will not study biology, geography, नहीं, वो पूरे नॉलेज को पढ़ेंगे, जितना भी नॉलेज है वो सारे को एक साथ पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर द थ्योरी ऑफ नॉलेज और द एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट, द सेकेंड पार्ट इज मेटाफिजिक्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज योर मेटाफिजिक्स। आई डोंट नो हाउ दिस डस्टर विल वर्क, सो लेट मी पोर सम वाटर्स। ओके, now I'll talk about the second aspect, that is metaphysics. ठीक है, I hope epistemology आप लोगों को समझ आया होगा। अब होप ही कर सकता हूँ क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट बात हो नहीं पाती, एंड दोज हु हैव माय नंबर, तो आप बता सकते हैं, फ़ोन करके डाउट भी पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें जानना हो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन टॉक विथ मी। ठीक है, सो नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट इज मेटाफिजिक्स। क्लियर है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट मेटाफिजिक्स। Metaphysics, and it is called as theory of reality. Metaphysics called as theory of reality, theory or the philosophy of reality. ठीक है, सो थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ रियलिटी। अब इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रियलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ रियलिटी, और हम बात कर सकते हैं इसमें नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, कि रियलिटी की नेचर क्या है और द नंबर ऑफ रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल सोल के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं या गॉड के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, भगवान के बारे में बात करते हैं सपोज, और मेटाफिजिक्स में ऐसे ही टॉपिक्स लेते हैं। सो इन मेटाफिजिक्स बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट सोल। सो ये मेटाफिजिक्स ही है जहां पर हम किसके किसके बारे में बात करते हैं, इन अंडर मेटाफिजिक्स वी टॉक अबाउट सोल, आत्मा, वी टॉक्ड अबाउट गॉड, वी टॉक अबाउट कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और द कॉन्शियसनेस। ठीक है,
अब ये टॉपिक जो हम पढ़ते, जो आप बोलते हो ना, मेन स्पिरिचुअल, द स्पिरिट, द सोल ऑल्सो कॉल्ड द स्पिरिट, मेन स्पिरिचुअल इंक्वायरी जो है वो यहीं पर है, ठीक है। सो वी टॉक अबाउट सोल, गॉड, कॉन्शियस, जो दूसरे ऐसी चीजें हैं जो आप डेफिनेटली डायरेक्टली अपने नेकेड आईज से देख नहीं सकते। समथिंग दैट यू कैन फील, समथिंग दैट यू कैन, अगर बहुत प्रैक्टिस करोगे इन विथ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, यू कैन फील, बट वो डेफिनेटली आप किसी को दिखा नहीं सकते उस चीजों को। यू कैन ऑब्जर्व दैट थिंग, यू कैन फील दैट थिंग बाय योर प्रैक्टिस, बट वो किसी और को आप दिखा नहीं सकते वो चीजें, ठीक है। सो इस तरह की स्टडी को क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स। क्लियर है? सो अंडर द मेटाफिजिक्स, अब किसी ने आपको आगे बोल दिया गॉड के बारे में, गॉड एग्जिस्ट करते हैं एंड इट इज अ थ्योरी ऑफ रियलिटी, या हो सकता है किसी ने आके बोला कि अर्थ ऐसे बना है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, या गॉड के बारे में बोल दिया। अब किसी ने आपको अगर गॉड के बारे में बताया एंड यू एक्सेप्टेड दैट व्यू, सो नंबर ऑफ रियलिटी, मोनिज्म, that only one reality exists, only one reality exists, ठीक है। एक ही रियलिटी होती है कि हाँ, किसी ने आके क्या बोला कि अर्थ की ओरिजिन हुई है भगवान ने की है, आपने उसको मानना है, दैट मीन्स ओनली वन रियलिटी एग्जिस्ट, भगवान ने इस पृथ्वी को बनाया है, एक ही रियलिटी है, दूसरी रियलिटी नहीं है, सपोज मोनिज्म। देन बट क्या 100% सच है भगवान ने बनाया? अभी हमको उसके ऊपर इंक्वायरी करना होगा। सो सम विल रिफ्यूट कि नहीं, भगवान ने नहीं बनाया, हो सकता है तुम्हारे भगवान ने बनाया होगा, हम नहीं डिस्कार्ड करते भगवान ने बनाया होगा, बट ये अर्थ तो गैसेस से भी बना है, और वो गैसेस पहले से प्रेजेंट थे जिनमें रिएक्शन हुआ और उससे ये अर्थ बना। तो वो दो व्यू आ गया हमारे पास। एक व्यू क्या है कि भगवान ने उसको बनाया है, चमत्कार हुआ, बन गया। दूसरा व्यू क्या रहा है कि नहीं, कुछ गैसेस थे हमारे यूनिवर्स में कहीं पर और उनका रिएक्शन हुआ आपस में, जिससे क्या हुआ, गॉड बन गए, ठीक है। क्या बन गया? अर्थ बन गया। या क्या बोले, सबका मालिक एक ही भगवान है, देयर इज ओनली वन गॉड, और वो पूरे अर्थ को कंट्रोल करते हैं। मोनिज्म टाइप ऑफ थॉट कि दैट देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट गॉड इज, अगर अब हिंदूज में आएंगे और इसमें जाएंगे तो अलग अलग रिलीजन में अपने अपने गॉड को बोलेंगे कि एक ही है। मुस्लिम विल से कि अल्लाह बस है, क्रिश्चियन विल बोलेंगे क्राइस्ट बस है, वही पूरे अर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। हिंदू में आएंगे तो यहाँ पर तो हम आपस में ही फिक्स नहीं है, बट फिर भी हम बोल देंगे लॉर्ड कृष्णा है या विष्णु है, ठीक है। फिर वहीं पर आ गया आपका क्या, दूसरा थॉट आता है कि नहीं, देयर आर मैनी रियलिटी, ड्युअलिज्म, बहुत सारी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत नहीं, मतलब देयर आर द टू रियलिटी, ड्वेल, नॉट मैनी, मैनी में आपका हुआ प्लूरलिज्म, दैट देयर आर द टू रियलिटीज, दैट इज ड्युअलिज्म। अब ड्युअलिज्म में आपको किस तरह से आपको बता रहे हैं कि हाँ भगवान ने बनाया होगा, वो भी हम मान रहे हैं, वो भी व्यू आपका एक्सेप्टेड है फिलोसफी के अंदर, उसको भी हमने माना है कि ठीक भगवान ने माना है। और दूसरा बोल रहे हैं गैसेस के रिएक्शन हुए जिसके कारण बाद में वो गैसेस का जो क्लाउड बना वो घूमने लगा, वो ठंडा हुआ, एक्रीशन हुआ, उसमें से जो बड़े पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, बाहर की ओर गए, छोटे पार्टिकल्स जमा हो गए और उससे क्या बना, हमारा प्लेनेट बना। ये भी एक व्यू है, दैट इज अ थ्योरी ऑफ नेबुला एक्रीशन, ठीक है। तो वो भी एक थ्योरी एक्सेप्टेड है। या हम बोल सकते हैं मेटाफिजिक्स के अंदर भगवान के बारे में कि नहीं, देयर आर मैनी गॉड्स, बहुत सारे भगवान हैं और वो अलग अलग एरिया को कंट्रोल करते हैं। जैसे हिंदुइज्म में हमने बात किया कि देयर आर मैनी टाइप ऑफ गॉड्स, और बहुत सारे भगवान हैं, और हम एक तरह क्या बोल रहे हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड। तो अगर मैनी गॉड का कॉन्सेप्ट आया या मैनी पॉसिबिलिटीज की कॉन्सेप्ट आई, दैट मीन्स ड्युअलिज्म, दैट इज मोर देन वन और द टू रियलिटी एग्जिस्ट। Dualistic thought, and two reality exists at the same time, dualistic thought. Then the third aspect is pluralism, that is many reality exist. That there are many reality exist, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझते हैं, एकदम इजी वे में, ठीक है। ये क्या आपका, सपोज करो
ये आपका कहीं पर कोई एक एरिया है, यहाँ आपको जाना है, दिस इज द प्लेस जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, एक प्लेस है वहाँ जाना है और यहाँ से आप चल रहे हो, दिस इज सोर्स, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। एंड आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप इस रोड से गए हो, ठीक है, ये एक नॉर्मल रोड है और इससे आप क्या गए, आप गए, आप कौन थे, ए, यू आर ए, और आप क्या किए, अपने जगह से यहां पहुंचे इस रोड से, क्लियर है। एक और आदमी आया, उसका नाम क्या था, बी, ठीक है, ये रामू था, ये श्यामू है, बी हमारा श्यामू हो गया। श्यामू भी यहीं से स्टार्ट किया था, रामू भी यहीं से स्टार्ट किया था, रामू सीधा गया जो आपको, श्यामू इस रोड से गया, फिर वो क्या, रोड भटक गया और कहीं इधर चला गया, और इधर जाने के बाद देखा कि यहां से एक और रोड थी जो इस प्लेस को टच करती थी। सो श्यामू यहां से गया और इधर से पहुंचा उस प्लेस पे, ठीक है। सी, इनका एक और फ्रेंड था, वो क्या हुआ, वो सीधा बाहर कहीं इधर से आया और वो इस प्लेस में पहुंचा। अब तीनों क्या हुए, सेम प्लेस को सेम जगह पर पहुंचे। अब किसी ने ए से पूछा यहां जाने का रास्ता क्या है, तो उसने क्या बोला कि ये वाला रास्ता है, और बोला कि बस वही रास्ता है, वो रास्ता और वही रास्ता है और उसको छोड़े कोई रास्ता नहीं है, खत्म, बात वहीं पर खत्म होती है। मोनिज्म, ओनली वन रियलिटी एग्जिस्ट, और वो क्या है, यही रास्ता है, ठीक है। बी से पूछे, बी बोला कि नहीं, इधर से एक रास्ता जाता है, ये तो है, ये तो जा रहा है, पर ये भटक गया था, तो बोला कि हाँ, ये तो ए तो सही बता रहे हैं। डी आया तीनों से पूछ रहा है, तो बोला ए तो सही बता रहे हैं कि वो रास्ता है, पर यार मैं एक दिन गया था, मैं आधे रोड में भटक गया कहीं, और मैं किसी और रोड में चला गया और मैं फिर यहां से पहुंचा और उसी प्लेस में पहुंचा, तो ये बोल रहा हो ही नहीं सकता, मोनिज्म थॉट वाला आदमी है। बी बोला कि नहीं है, तो ए तो बोल रहा वो सही है, वो रास्ता तो एकदम सही था, बट मैं गया, ये भी रास्ता सही था, दैट इज ड्युअलिज्म, कि हाँ दो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट इज टू रियलिटी एग्जिस्ट। फिर वो सी से भी पूछ रहे हैं, सी से पूछ रहे हैं, सी सेड कि नहीं यार, वो दोनों तो रास्ता, मैं इस रास्ते से मैं गया नहीं था, मैं एक और, ये दोनों सही बता रहे हैं, दोनों रास्ते तो हो सकता है, पर यार मैं ना कहीं और से गया था और मैं भी उसी प्लेस पे पहुंचा, तो ये भी सही है। तो दो से अधिक सच्चाई उसी जगह पे पहुंचने की, दो से अधिक पाथ है, दैट इज मोर देन टू रियलिटी एग्जिस्ट, और देयर आर द मेनी रियलिटी एग्जिस्ट, और भी होंगे। प्लूरल थॉट, एक ही चीज को करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक ही नॉलेज के कई सोर्स हो सकते हैं, सो उसको भी एक्सेप्टेंस देगा, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरलिज्म, कि बहुत सारे भगवान है, ओनली वन, तो बहुत सारे इस तरह का रिफ्यूटेशन होगा, कोई ड्यूलिस्टिक थॉट देगा, कोई मैनी थॉट देगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कौन से फिलोसोफर आ रहे हैं, वो फिलोसोफर कैसे सोचेंगे, हम वो सोच रहे हैं, किसके बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे। तो उन लोग जब सोचना स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले की बात कर रहे हैं, अभी हम किसी फिलोसोफर्स को, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी चालू नहीं किए, वो लोग कैसे सोचेंगे मैं वो आपको बता रहा हूं। आई विल कम एंड से, शंकराचार्य जो थे वो क्या कर रहे थे, मोनिस्टिक थॉट्स को कर रहे थे, अद्वैतवाद, अद्वैत, नॉन ड्यूलिज्म, मोर ऑफ मोनिज्म थे, कि देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। तो उसको समझना, परम ब्रह्म, तो यहीं से समझ आएगा कॉन्सेप्ट कि वो सोच क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, ये नॉलेज कहां से आया, ये इसको हम पढ़े कैसे रहेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, हम उस चीज को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को हम पहले पढ़ रहे हैं कि वो थॉट कैसे डेवलप होगा, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज के साथ साथ हम क्या, थ्योरी ऑफ रियलिटी, सो इफ द ओनली वन रियलिटी एग्जिस्ट, दैट इज मोनिज्म, मोर देन वन ड्यूलिज्म, मोर देन और मैनी रियलिटी, दैट इज प्लूरलिज्म। सो वी टॉक अबाउट द रियलिटी, एंड दिस रियलिटी हम किसके बारे में बात करें, अबाउट द लाइफ, अबाउट योर यूनिवर्स, अबाउट सोल, अबाउट गॉड, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इट इज मोर ऑफ योर मेटाफिजिकल, और इसमें हम किसके इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग कॉन्शियस माइंड के इन्वॉल्व करते हैं, क्लियर है। चलिए, देन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, और इन मेटाफिजिक्स हम रियलिटी को दो ही तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। इन अंडर मेटाफिजिक्स आवर रियलिटी इज ऑफ टू टाइप, नंबर ऑफ रियलिटी कई तरह हो सकता है, बट नेचर को देखेंगे तो ऑन बेसिस ऑफ नेचर
On the basis of nature of reality, we divide reality into the two aspects. One is materialistic, and second is spiritual और spiritualistic, जिसको अध्यात्म बोलते हैं, और ये आपका क्या है, तत्व, जो आपका क्या है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो आप डायरेक्टली अपने आईज से देख सकते हैं. सो द नेचर ऑफ रियलिटी. सो नेचर ऑफ रियलिटी अंडर मेटाफिजिक्स देयर इज योर मेटेरियलिस्टिक होते हैं, और वो क्या बोला कि रियलिटी दो तरह से हो सकते हैं, उनके नेचर दो प्रकार के हो सकते हैं. वन इज मेटेरियलिस्टिक एंड अदर इज स्पिरिचुअल. ठीक है. अच्छा, मटेरियलिस्टिक अगर बोलेंगे किसी भी रियलिटी को, बिकॉज हम नेचर की बात कर रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं, तो मटेरियलिस्टिक क्या होगा, दैट एग्जिस्ट, जिसको आप टच कर रहे हैं, जिसको आप फील कर रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं डायरेक्ट. ठीक है. सो इट इज मोर अबाउट थिंग्स वी हैव ऑन अर्थ, इन रियल, जो हम देख सकते हैं, दैट वी कैन सी टच और फील थ्रू अवर सेंसेस, जो नॉर्मल सेंसेस हैं. ठीक है. बट एक और रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज द स्पिरिचुअल, जो अध्यात्म है, दैट वी कैन नॉट फील, वी कैन नॉट टच, वी कैन फील बट वी कैन नॉट टच. हम उसको अपने डायरेक्ट सेंसेस से हम उसको नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे. ठीक है. बहुत मेडिटेटिव स्टेट को अटेंड करेंगे तब उसको कर पाएंगे. एंड दैट इज योर स्पिरिचुअल. And this spirituality involve the study of soul, God, consciousness, ये सारा चीज. ठीक है. So more of inquiry, जो मेटाफिजिक्स का इंक्वायरी ज्यादा झुका हुआ है, वो lesser towards this and more towards spiritual है. ठीक है. बट फिर भी हम दोनों रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है. So I hope मेटाफिजिक्स आपको समझ आया होगा. मेटाफिजिक्स इज अल्टीमेटली द थ्योरी ऑफ रियलिटी, और रियलिटी किस तरह की और कैसे वो होती है. वेदर द रियलिटी इज मोनिज्म, ड्यूलिज्म और प्लूरल, की बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, एक ही है. जैसे कि हम स्पिरिचुअल की बात करेंगे, नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ, तो मटेरियलिस्टिक रियलिटी है या स्पिरिचुअल है. अब स्पिरिचुअल रियलिटी के अंदर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गॉड की. तो गॉड को हम कैसे देखेंगे, फ्रॉम नंबर ऑफ रियलिटी, कि मोनिस्टिक व्यू है गॉड के ऊपर, या ड्यूलिस्टिक व्यू है गॉड के ऊपर, या प्लूरिस्टिक व्यू है गॉड के ऊपर. हो सकता है हम लोग यहाँ पर सोल की बात कर रहे हैं, तो सोल के ऊपर कई लोगों की बात होगी, मोनिस्टिक भी हो सकती है, ड्यूलिस्टिक भी हो सकती है, या प्लूरिस्टिक भी हो सकती है. अबाउट रीबर्थ, अब सोल क्या होता है, खत्म नहीं होता, इसका क्या होता है, रीबर्थ होता है. कुछ लोग ये बोल रहे हैं, विल टॉक अबाउट द रीबर्थ, विल टॉक अबाउट मोक्ष, लिबरेशन, कि लिबरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज. अब इंडियन फिलॉसफी में हम क्या कोशिश कर रहे हैं, सबको लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए. तो मोक्ष प्राप्ति का एक ही तरीका है या बहुत सारे तरीके हैं. To attain the liberation there is only one path or many path. तो कुछ फिलोसोफर आएंगे और क्या बोलेंगे, there is only one path and the path is surrender to God. भगवान के सामने आप जाके सरेंडर कर दो और भगवान आपको क्या करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति दिलाएंगे. Some will come and say कि ना बाबा, कर्म को करो अपना, you have to perform your duty, your work, your task, then only you can be liberated. ये भी सही है. ठीक है. सो डिफरेंट व्यूज विल एग्जिस्ट अबाउट द रियलिटी किसी भी चीज के लिए, और अल्टीमेटली इनके रियलिटीज पे हम बात कर रहे हैं. क्लियर हो रहा है. सो दिस इज अबाउट द मेटाफिजिक्स एंड द अदर इज योर डोमेन कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टडी और द सिलेबस और आपका जो भी चीजें देखोगे तो इन्हीं दोनों के अराउंड रिवॉल्व होगी. ठीक है. सो मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस और द थिंग्स विल रिवॉल्व अराउंड दिस टू थिंग. ओके. चलिए. सो दिस टू प्लीज याद रखिए, द मेटाफिजिक्स और द वन आई एक्सप्लेन टू यू ऑल. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी. नाउ आई विल डील द अदर पार्ट्स, जो बचे हुए हैं उसको भी देखते हैं. सो नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज एथिक्स. एथिक्स क्या होता है. तो इन बेसिक टाइप्स के क्वेश्चंस पे आपको आएगा राइट अबाउट द नेचर ऑफ फिलॉसफी, तो आपको ये सारी चीजों को क्या करना होगा, समझाना होगा 1 लाइंस और 2 लाइंस पे. ठीक है. हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि एथिक्स, सॉरी, जो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, स्कोप, इस स्कोप के थ्रू और इस चीजों के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, इन्हीं को अप्लाई करेंगे इन द फर्दर लेक्चर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी. ठीक है. वहां पर यही सारे शब्द तो आएंगे आपको बार बार क्वेश्चन में, कि मेटाफिजिकल व्यूज क्या है, आपके एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज क्या है. ठीक है. तो वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे.
चार वाक को हम मेटाफिजिकल व्यूज में लेकर जाएंगे, हेडोनिज्म में लेकर जाएंगे, तो वो कहाँ से आया, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी ओरिजिन यहीं से है। क्लियर है? सो प्लीज थोड़ा सा होल्ड करिए आप लोग, देन विल वी स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एथिक्स। ठीक है, तो एथिक्स को भी हम पढ़ेंगे। अच्छा चलिए एथिक्स के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे आपका अभी अबाउट द नेचर ऑफ फिलॉसफी। नेचर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। एंड अंडर दिस टॉपिक अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, दो नेचर को समझे। एपिस्टेमोलॉजी, जिसको क्या बोला जाता है, ज्ञान मीमांसा। दिस एपिस्टेमोलॉजी इज कॉल्ड एज द ज्ञान मीमांसा, द थ्योरी ऑफ नॉलेज। देन वी टॉक्ड अबाउट मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स दैट इज तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, इसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, इसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। ठीक है। देन नाउ द थर्ड एस्पेक्ट इज एथिक्स। And ethics is a study, mainly the study of human conduct. Ethics is a study of mainly of human conduct. ठीक है। And through ethics, a person can or a human can identify or segregate between what is right and what is wrong. तो सही और गलत के बीच हम आइडेंटिफाई कहां से कर सकते हैं, थ्रू द एथिक्स। ठीक है। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एंड इट इज मेनली टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन कंडक्ट एंड इट गिव्स ह्यूमन, जो ये चीजें, इट गिव्स ह्यूमन द आइडिया अबाउट और नॉलेज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट एंड रॉन्ग। ठीक है। तो थ्रू एथिक्स यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द राइट कंडक्ट एंड व्हाट इज द रॉन्ग कंडक्ट। क्लियर है? तो एथिकली राइट होने की बात करते हैं आपको, कि एथिकली आपको साउंड होना चाहिए। कभी भी जब एथिकल डायलेमा की भी हम बात कर रहे थे, कि वहां पर जब मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि एक इंसान ने खाना बनाया और उसको कोई खा नहीं रहा है, रेदर देन सीइंग कि उसने हाइजीन और प्रॉपर फूड को मेंटेन किया है, आप उसके रिलीजन को देख रहे हैं, उसके कास्ट को देख रहे हैं। ठीक है। तो वो एथिकली राइट नहीं हो आप, क्योंकि अल्टीमेटली वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। तो यू हैव टू चूज बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। क्लियर है? सो एथिक्स गिव यू द स्टडी रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग। और यहां पर जो है राइट एंड रॉन्ग, इट इज योर वॉलेंटरी राइट एंड रॉन्ग। वॉलेंटरी मतलब वो खुद, एथिक्स talks about the human conduct and that conduct is voluntary conduct, voluntarily or the voluntary conduct। अब voluntary conduct क्या होता है, आपको किसी ने बोला कि भाई तू जाके उसको मार दे, या आपको किसी ने बोला कि आपको वहां जाके खाना नहीं खाना है, तो उसने बोला इसलिए आप खाएं, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपने, आपकी वॉलेंटरीली, जो आपने खुद से क्या डिसाइड किया, उसकी स्टडी होती है एथिक्स। एथिक्स इज नॉट समथिंग दैट मेरे तरफ से आपको क्या मिला, एथिक्स इज समथिंग कि आपके अंदर क्या है, हाउ गुड यू आर इन प्रोटेक्टिंग बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, दैट इज द वॉलेंटरी कंसिडरेशन, द वॉलेंटरी ह्यूमन कंडक्ट्स। उसमें हाउ दे आइडेंटिफाई बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, उसकी स्टडी होती है एथिक्स। एथिक्स इज नॉट अबाउट कि ओवरऑल की नहीं होती, पर्सन टू पर्सन होती है। ठीक है। सो ओनली अ वॉलेंटरी जो डीड्स हैं, द वॉलेंटरी डीड्स मतलब जो काम कर रहे हैं, the voluntary deeds of person is considered and not the involuntary deeds। मतलब किसी ने आपको बोला फिर आपने उस कर्म को किया है, उसको नहीं देखेंगे अंडर एथिक्स, उसको नहीं। अंडर एथिक्स वी स्टडी अबाउट द वॉलेंटरी डीड्स। लाइक द एग्जांपल आई गेव कि एक पर्सन भागते हुए गया, उसके घर में छुप गया, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने बोल दिया कि नहीं यही नहीं छुपा हुआ है। तो ऑन द फेस अब आपको क्या करना है, आप उस पर्सन को जज करेंगे कि उसने झूठ बोला है for his voluntary deeds and not the, जो उसने जो उसके रूम पे उसने बोला होगा मत बताना, तब क्या हो चीज नहीं, पर उस पर्सन ने झूठ बोला, हम उस चीज को जज करना, दैट इज द एथिक्स, कि वहां पर आपको साउंड होना है। सो एथिक्स इज मोर अबाउट स्टडी अबाउट द ह्यूमन कंडक्ट एंड दैट इज योर वॉलेंटरी डीड्स और वॉलेंटरी कंडक्ट। अब
and that gives you the idea regarding identification of what is right and wrong conduct. तो एथिक्स में आपको ऐसी ऐसी वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, एथिक्स में ऐसे ऐसी चीजें, प्रिंसिपल्स दी गई हैं जिससे यू कैन आइडेंटिफाई बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट इन लाइफ. ठीक है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ एथिक्स. क्लियर है. एक और चीज, जैसे हम एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेटाफिजिक्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर मोस्टली क्या कर रहे थे हम लोग, बाकी आए कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल द सब्जेक्ट्स गिव्स यू नॉलेज रिगार्डिंग किस, ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी हो वो आपको क्या देता है, नॉलेज देता है. Whatever you study, what all subjects you will study or learn, that subject will give you the knowledge. कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपको क्या देता है, नॉलेज. पर what is right and wrong, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है. सो बेसिकली ethics identify between the right and wrong, and it is majorly considered with the human conduct, and that too is your voluntary conduct or the voluntary deed. Clear है. So under the nature of philosophy you can talk about epistemology, metaphysics, ethics. ethics के साथ साथ, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आपको डालना हो तो भी आप डाल सकते हैं. ठीक है, जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ उस एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करके वहां पर लिख सकते हैं. अच्छा, एथिक्स के बाद वी टॉक्ड अबाउट वन मोर थिंग, लॉजिक. लॉजिक दैट इज रैशनल अप्रोच टुवर्ड्स समथिंग. अब लॉजिक क्या है आपका, रैशनल है. ठीक है, एक रैशनल अप्रोच है. रैशनल अप्रोच है, या आप बोल सकते हैं कि लॉजिक से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पता कर रहे हैं. ठीक है, तो रैशनल वे ऑफ स्टडी और स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी नॉलेज इन रैशनल अप्रोच, इलॉजिकल नहीं है ये क्या है आपका, एक रैशनल अप्रोच में है, साइंटिफिक टर्म पे है, रैशनल और साइंटिफिक है. स्टडिंग नॉलेज इन अ रैशनल और साइंटिफिक वे. एंड द लॉजिक इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के लॉजिक होते हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉजिक इज इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव, और एक होता है डिडक्टिव. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ लॉजिक, वन इज इंडक्टिव एंड अदर इज डिडक्टिव. इंडक्टिव को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव नॉलेज को बोलता जाता है पर्टिकुलर, समझाएंगे आपको क्या होता है, पर्टिकुलर. इंडक्टिव लॉजिक इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल. पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल इज इंडक्टिव, और जो डिडक्टिव होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर. यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर. सर अब ये तो और हार्ड कर दिया आप. तो साइंटिफिक स्टडी और द स्टडी ऑफ नॉलेज इन द रैशनल अप्रोच, और ये साइंटिफिक स्टडी है, और स्टडी दो तरह से होती है, इधर इट इज डिडक्टिव वन और द इंडक्टिव वन. अच्छा, यहां पर क्या होता है, इंडक्टिव हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टू यूनिवर्स. सपोज देखो, मान लेते हैं 5-6 प्लेसेस हैं. ठीक है, अब इंडक्टिव लॉजिक कैसा होगा, इंडक्टिव नॉलेज ये होगा कि सपोज करते हैं ये लैंड है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है. सपोज करिए सारे के सारे क्या आपके लैंड है या वाटर बॉडी, कुछ भी आप जो कंसीडर करना चाहें. अब एक आदमी या कोई एक लॉजिक ऐसा डिड्यूस होगा कि इस एरिया पे हमने क्या देखा, इस लैंड के ऊपर हमने बहुत सारी चीजें देखी. सपोज करो वी हैव ट्रीज, वी हैव प्लांट्स. ठीक है, अब एक नंबर का इंडिकेट किया कि देखो जमीन के ऊपर ये चीजें होती हैं. सो पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर एरिया पे हमने ये सारी चीजें देखी. एंड देन थ्रू इंडक्टिव लॉजिक हमने बोला कि नहीं, जहां भी जमीन होगा ये सारी चीजें वैसी होंगी, ऐसी ऐसी चीजें वहां मिलनी चाहिए. दैट इज पर्टिकुलर नॉलेज लेकर हमने उसको क्या किया, यूनिवर्सली एप्लीकेबल किया. दैट इज योर लॉजिक बेस्ड स्टडी. कि हाँ इस लैंड पे ऐसा ससी दिख रहा है तो डेफिनेटली इस तरह की जहां भी लैंड होंगे हर जगह ऐसा ही चीज होगा. एक इंसान के अंदर क्या है, आत्मा है, तो एक इंसान के अंदर आत्मा, तो डेफिनेटली यही आत्मा हर इंसान के अंदर होगा. डेफिनेटली हर इंसान के अंदर क्या होगा, आत्मा होगा. अगर यहां पर प्रकृति ने चमत्कार दिखाया है, गॉड ने यहां पर कुछ किया है, और इस पर्टिकुलर प्लेस में गॉड का कोई भी एग्जिस्टेंस दिख रहा है, तो डेफिनेटली गॉड हर जगह प्रेजेंट होंगे. ही शुड बी एन ओमनी प्रेजेंट.
एंड नॉट एट द पर्टिकुलर रीजन। तो हम पर्टिकुलर नॉलेज को हम क्या करते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल करना है, इज कॉल्ड एज इंडक्टिव लॉजिक। जब हम स्टडी करेंगे किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो इस इंडक्टिव लॉजिक को अप्लाई करते हैं। अदर वे अराउंड देयर इज अ डिडक्टिव लॉजिक दैट इज यूनिवर्सली हर जगह है, इसलिए यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। आपने क्या किया है, आपने यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, हर जगह वो चीजें दिख रही है इसलिए वो यहां पर भी होगा, यहां पर है इसलिए हर जगह होगा। और दूसरा वे राउंड क्या है, हर जगह है इसलिए जो जगह बचा है वहां भी होगा, दैट इज यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। सो आप हर चीज की स्टडी की अंदर बोले कि यहां तो डेफिनेटली होगा, तो लॉजिक बेस्ड स्टडी कैसा है। एक बड़ा अच्छा इसमें वो आता है कि स्टडी को समझाने के लिए कि कहीं धुआं उठा है, सपोज करो धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी। एकदम सिंपल सा है कि देयर इज अ स्मोक, इफ देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। ये क्या है, ये यूनिवर्सल को हमने पर्टिकुलर कर दिया है, क्योंकि हमको ये पता है कि जब भी आग लगाते हैं तो धुआं उठता है, तो कहीं पर आग लगी है तो कहीं पर धुआं उठा है तो डेफिनेटली वहां क्या होगी, आग लगी होगी। पर हो सकता है आग नहीं लगा, वो मच्छर वाला होगा जो घूमता है, ठीक है, उसने अपने मच्छर वाली गाड़ी पिटाया होगा, आग तो लगाया नहीं, सिर्फ धुआं फैलाया है। मतलब ऐसे सपोज कर रहे हैं, ठीक है, वो तो मूव भी कर गया वहां से। बट हाँ, एक प्रकार से क्या है, आपका डिडक्टिव बेस्ड स्टडी है, ठीक है। दूसरा सॉरी हाँ, ये क्या हो रहा है आपका कि अब किसी एक इवेंट को हम पूरे के पूरे हर एक इवेंट से जोड़ दिए, दैट इज इंडक्टिव, कि हाँ एक जगह पे ये चीज हुआ, डेफिनेटली इस तरह का पूरा का पूरा यूनिवर्स हम क्या कर रहे हैं, उस चीजों को करस्पॉन्ड जोड़ रहे हैं कि हाँ कहीं हर जगह कहीं भी आग लगता है तो वहां से क्या होता है, धुआं उठता है, तो हम क्या बोलते हैं, धुआं उठा तो वहां पर आग लगी है। सच टाइप ऑफ स्टडी, ठीक है। अभी एक एग्जांपल यहां पर समझ नहीं आएगा, दिस एग्जांपल विल बी मोर क्लियर इन द थ्योरी ऑफ इंडियन फिलोसफी, जब मैं बताऊंगा मैनी एग्जिस्टेंस वन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिवर्सली गॉड है इसलिए एक जगह पे गॉड है, ये पर्टिकुलर गॉड इस जगह में मिलते हैं इसलिए आपके यूनिवर्स में हर एक जगह पे मिलेंगे। इस तरह की स्टडी को बोलते हैं लॉजिक बेस्ड स्टडी, ठीक है। सो लॉजिक इज ऑल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ फिलोसफी, ठीक है। सो नेचर ऑफ फिलोसफी, वी कैन टॉक अबाउट एपिस्टेमोलॉजी, वी कैन टॉक अबाउट मेटाफिजिक्स, वी कैन टॉक अबाउट एथिक्स, वी विल टॉक अबाउट लॉजिक्स, और लॉजिक के बियॉन्ड जाकर और भी चीजें हैं उसको भी समझते हैं। कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं। कॉस्मोलॉजी, सो कॉस्मोलॉजी मैंने बताया था आपको, कॉस्मो कल ही बताया था इस वर्ड के बारे में भी, कॉस्मिक इज अबाउट दिस यूनिवर्स। सो कॉस्मोलॉजी इज अ स्टडी बेसिकली अबाउट द यूनिवर्स एंड इट अंडर यूनिवर्स इट मेनली डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, अबाउट द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ लाइफ। कॉस्मोलॉजी बेसिकली डील्स विद द प्रॉब्लम एंड प्लस सॉल्यूशन ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स, ठीक है। सो बेसिकली कॉस्मोलॉजी के अंदर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइफ के बारे में, इस लाइफ को पढ़ते हैं, अबाउट द ह्यूमन इंडिविजुअल, और उसके क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये बेसिकली बिल्कुल बेसिक लेवल पे कॉस्मोलॉजी पे इस पे डील की जाती है, ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्स एंड द लाइफ, ठीक है। तो उसकी जो भी ट्रेसिंग है कैसी है वो सारी चीजों को कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, कॉस्मोलॉजी में। मेनली ये दोनों वो करता है, एथिक्स है आपका, लॉजिक है, एंड देन कॉस्मोलॉजी। सो जस्ट राइट डाउन अबाउट द कॉस्मोलॉजी, वन लाइन लिख लीजिए। कॉस्मोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी और द स्टडी ऑफ फिलोसफी which deals with the problem and solution of life and universe. The problem and solution of life and universe. Then one more thing under the philosophy, that is theology. Theology called as philosophy of religion. ठीक है, theology is also known as philosophy of religion. अब इसमें क्या हो रहा है, अंडर द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन वी बेसिकली टॉक्स अबाउट द रिचुअल्स, द डिफरेंट प्रैक्टिसेस, द काइंड्स ऑफ बिलीफ सिस्टम अंडर द रिलीजन। किस तरह का बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, कौन सी प्रैक्टिस है, किस तरह के वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं, प्रेयर कर रहे हैं, उन सारे का क्या एग्जिस्टेंस है, और
क्या वो सच में जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो पर्पस को उससे फुलफिलमेंट होता है कि नहीं, क्या उससे वो पर्पस पूरा होता है कि नहीं। सो जस्ट राइट डाउन, फिलॉसफी और द थियोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलीजियस फेथ, प्रैक्टिस एंड experiences especially the study of God, especially the study of God and its relation with world। तो हम क्या करते हैं थियोलॉजी में स्टडी रिलीजियन प्रैक्टिसेस की, उसके हर एक चीजों की, और भगवान का क्या रिलेशन है इस वर्ल्ड से। सो मोर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कि वहां पर क्या चीजें बताई गई हैं, कौन सा भगवान है, वो रिलीजन की स्टडी होती है। इट्स अ फिलॉसफी ऑफ रिलीजन कि अगर गॉड है तो गॉड का इस वर्ल्ड से क्या रिलेशन है, और ये गॉड के लिए ये जो रिलीजन में हम अलग अलग रिचुअल्स करते हैं, क्या इस रिचुअल से उस गॉड तक पहुंचा जा सकता है या कुछ और तरीका है। सो या तो बोलते हैं ना कि आप धर्म को अपना लीजिए, या ये धर्म के नाम से अगर पूजा पाठ करो तो आपको भगवान मिल जाएगा, और एक बोलते हैं नहीं आपको क्या करना होगा, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें, अध्यात्म और धर्म अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बट हाँ देखोगे तो क्लोजली सिंक्ड भी है। क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द नेचर एंड द स्कोप ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, समझ आया होगा। सो जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी। एकदम बेसिक क्वेश्चन। सो हियर वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, कि फिलॉसफी किस चीज़ की स्टडी है और उस स्टडी के अंदर हमारा कोर एरिया क्या है और उसका एप्लीकेशन किस किस एरिया में हम लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सारे चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, एक तरह की स्टडी कर रहे हैं, जिस स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं, फिलोसॉफिकल स्टडी। एंड दिस ऑल स्टडीज बेसिकली अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। किसी भी चीज़ को हम खोज रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हैं नहीं, हम उसको खोज रहे हैं। सो इट इज बेसिकली अ इन्वेस्टिगेशन regarding finding the solution of a problem, so क्या है आपका इन्वेस्टिगेशन प्लस फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, एंड दिस इज इक्वल टू फिलॉसफी। ठीक है, सो फिलॉसफी इज अल्टीमेटली इज एन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी for finding the solution of problem related to life and universe। यही से इसकी ओरिजिन भी हुई थी कि ये दुख का कारण क्या है, और उसी दुख के कारण को खोजते खोजते हमने एक सब्जेक्टिव बना दिया। ठीक है, सो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, पहले बात नॉलेज को हम सर्च करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, रियलिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन कंडक्ट को भी हम इसी चीज़ों में समझते हैं, उसको लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्मोलॉजिकल व्यूज में हम जहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है उस प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, और रिलीजन के एस्पेक्ट्स में भी इसको समझने को रहे हैं। सो अल्टीमेटली क्या है, इट इज द इन्वेस्टिगेशन प्लस फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस इज फिलॉसफी। ठीक है, सो इट इज द नेचर ऑफ फिलॉसफी एंड द स्कोप ऑफ फिलॉसफी। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक अंडर योर सिलेबस, दैट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी। इन द लास्ट लेक्चर आई टॉक्ड अबाउट व्हाट इज फिलॉसफी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी। In further lecture we'll talk about the relation of philosophy with other things, कि philosophy का क्या relation है sociology से, sorry, what is the relation of philosophy with religion, and we'll also talk about what is the relation of philosophy with cultures, and then I will start with the Indian philosophy जिसका आपको वेट है। ठीक है, सो वहाँ से फिर हम इंडियन फिलोसफी को स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, ये बेसिक चीज़ों को समझना है। देखो ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, इंडियन फिलोसफी जब पढ़ाऊंगा तो यही छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे, और यही वर्ड्स आपको परेशान करेंगे कि उसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही। इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको इन सारे वर्ड्स की छोटी छोटी मीनिंग्स के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। द लास्ट क्लास आई टॉक्ड अबाउट वेरियस वर्ड्स, उनको समझाया था। आज देखो उससे एक लेवल ऊपर जाकर हम कुछ और वर्ड्स को समझ रहे हैं, क्योंकि इन वर्ड्स को समझोगे, जितना अच्छा इन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, उतना अच्छा आप क्या करोगे, फिलॉसफी को डेवलप कर पाओगे इन योर ब्रेन, और अल्टीमेटली आप आंसर उतना ही अच्छा लिखोगे। सो दिस इज पंकज गुप्ता फ्रॉम बिलासपुर IAS Academy, summing up this lecture on Indian philosophy. Thank you all.